لبيك اللهم لبيك لبیک مکہ کی فضائیں لبیک اللہما لبیک کی صدا سے گونج رہی تھی۔ لاکھوں حاجی احرام باندھے مینا کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ یہ یوم ترویہ تھا۔ یہ تاریخ انسانی کا وہ منفرد اور پردرد دن ہے جب ایک طرف تو دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر احرام باندھ رہے تھے اور لبیک اللہما لبیک کی صداؤں سے وادی بطحا گونج رہی تھی، اور دوسری طرف کعبہ کا حقیقی وارث رسول خدا کا نواسا کعبے کی حرمت کو بچانے کے لیے کعبہ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت ایک عجیب سا روحانی جوش و خروش تھا۔ حجاج کرام مینا کی طرف روانہ ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھے، مگر نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ایک طویل اور کٹھن سفر کے لیے تیار ہو رہا تھا، جس کی منزل مینا یا عرفات نہیں بلکہ کربلا کا تپتا ہوا سہارا تھا۔ امام حسین علیہ السلام ماہ رجب کے آخری دنوں میں مدینہ سے روانہ ہو کر 3 شعبان کو مکہ تشریف لائے تھے، اور ان چند مہینوں میں آپ نے حرم الہی میں قیام کیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور ان تک دین محمدی کا اصل پیغام پہنچایا، مگر شام کے تخت پر بیٹھا ہوا یزید جو اسلامی اقدار کو پامال کر چکا تھا، کسی بھی صورت میں امام عالی مقام سے اپنی حکومت کی بیعت چاہتا تھا۔ جب اسے اس ناپاک ارادے میں ناکامی کا یقین ہو گیا تو اس نے ایک انتہائی خوفناک اور مذموم سازش تیار کی۔ یزید نے حاجیوں کے لباس میں اپنے مسلح افراد کا ایک گروہ مکہ روانہ کیا، جن کے احراموں کے نیچے زہر آلود خنجر اور تلواریں چھپی ہوئی تھیں۔ ان صفاق قاتلوں کو یہ واضح اور سخت حکم دیا گیا تھا کہ حسین ابن علی جہاں بھی ملے، چاہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف سے ہی کیوں نہ لپٹے ہوں، ان کا خون بہا دیا جائے۔ امام عالی مقام جو علم امامت کے وارث اور حالات کے حقیقی محرم تھے، یزید کی اس گھنونی سازش سے پوری طرح آگاہ ہو چکے تھے۔ مکہ وہ پرامن شہر ہے جس کی حرمت کا اعلان خود پروردگار نے کیا ہے، جہاں ایک پتے کا توڑنا یا کسی پرندے کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مقدس خون کی وجہ سے حرم خدا کی بے حرمتی ہو اور کعبہ کے صحن میں خون ریزی کی تاریخ رقم ہو۔ آپ کا مقصد دین کی حفاظت تھا، نہ کہ اپنے خون سے اس مقدس ترین مقام کی حرمت کو خطرے میں ڈالنا۔ اسی عظیم مقصد کے تحت آپ نے ایک انتہائی کڑا اور تاریخی فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حج کے احرام کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا تاکہ بیت اللہ کی حرمت قیامت تک کے لیے محفوظ رہے۔ اس عظیم سفر پر روانہ ہونے سے قبل امام حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر بنی ہاشم اور اپنے اصحاب کے سامنے ایک نہایت بلیغ، جذباتی اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ موت اولاد آدم کے گلے میں اس طرح سجا دی گئی ہے اور اس طرح لازم کر دی گئی ہے جیسے کسی جوان لڑکی کے گلے میں خوبصورت ہار ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے بزرگوں یعنی اپنے نانا رسول اللہ، اپنے پدر بزرگوار علی المرتضی، اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ زہرا اور اپنے بھائی حسن المجتبی سے ملنے کا اس قدر شدید اشتیاقاً ہے جتنا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ آپ نے انتہائی واضح الفاظ میں اپنے انجام کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے لیے ایک قتل گاہ منتخب ہو چکی ہے جہاں مجھے بہرحال پہنچنا ہے۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نواسیس اور کربلا کے بیابانوں میں صحرائی بھیڑیے میرے جسم کے آجا کو نوچ رہے ہیں اور اپنے بھوکے پیٹ بھر رہے ہیں جو قلم تقدیر سے لکھا جا چکا ہے۔ ہم اہل بیت اسی پر راضی ہیں، اللہ کی رضا ہی ہماری رضا ہے۔ ہم اس کی آزمائش پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں صابروں کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ خطبے کے آخر میں آپ علیہ السلام نے کائنات کے ہر حریت پسند کو ایک ابدی دعوت دی اور فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی ہمارے راستے میں اپنے دل کا خون دینے اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ کوچ کرے، میں کل صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ خطبہ سننا تھا کہ مکہ میں موجود آپ کے جانثاروں، چاہنے والوں اور خاندان کے افراد پر ایک عجیب رقت اور اضطراب طاری ہو گیا۔ روانگی کی خبر مکہ کے اطراف میں تیزی سے پھیل گئی۔ آپ علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار اور مکہ کے معززین شدید پریشانی کے عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ان میں خاندان کے بزرگ عبداللہ ابن عباس بھی پیش تھے۔ وہ بے حد مضطرب حالت میں آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے فرزند اے رسول، آپ اس سفر پر نہ جائیں۔ اہل کوفہ نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کے علم میں ہے، وہ بے وفا لوگ ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ
आपको धोखा देकर शहीद न कर दें। इब्न अब्बास ने मशवरा दिया कि अगर आपको मक्का की फजा साजगार नहीं लगती और आपको ये शहर छोड़ना ही है तो आप यमन की तरफ तशरीफ ले जाएं। वहाँ पहाड़ी और दुश्वार गुजार रास्ते हैं। वहाँ आपके वालिद ए गिरामी के वफादार शिया और चाहने वाले कसीर तादाद में मौजूद हैं। वहाँ आप महफूज रहेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी खैर ख्वाही, मोहब्बत और हमदर्दी को सराहा, लेकिन जवाब में इंतहाई सुकून और इस्तकामत से फरमाया कि ए इब्न ए अब्बास, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सच्चे हमदर्द हो, लेकिन मेरा इरादा अटल है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस शहर अमान की हुर्मत पामाल हो। अल्लाह के रसूल ने मुझे ख्वाब में एक वाज़ेह हुक्म दिया है और मैं उसी हुक्म की बजा आवरी के लिए जा रहा हूँ। रवानगी से एक रात कबल का मंजर और भी ज्यादा दर्दनाक था। आप अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई मोहम्मद बिन हनफिया रात के अंधेरे में आपके पास आए और उन्होंने भी आपको इराका जाने से रोकने की भरपूर कोशिश की। वो इस कदर रोए कि उनके आंसुओं से इमाम आली मकाम के ऊंट की महार भीग गई। उन्होंने इल्तिजा की कि आप मदीना वापस चले जाएं या किसी और महफूज मकाम का रुख करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी अपने ख्वाब और रसूल अल्लाह के हुक्म से आगाह किया। मोहम्मद बिन हनफिया ने रोते हुए पूछा कि अगर आपका इरादा मौत के मुंह में जाने का ही है तो फिर इन मस्तूरात, रसूल जादियों और छोटे बच्चों को साथ क्यों ले जा रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी और दिलदोज जवाब दिया जिसने कायनात के इरादों को वाजह कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की मशीयत यही है कि वो मुझे मकतूल देखे और खुदा ने ये भी तय कर रखा है कि वो इन मस्तूरात को कैदी बनकर बाजारों और दरबारों में जाते हुए देखें, क्योंकि इन्हीं की कवैद और खुतबात मेरे खून की और दीन इस्लाम की हिफाजत करेंगे। ये सुनकर मोहम्मद बिन हनफिया खामोश हो गए और रोते हुए अपने अजीम भाई को अलविदा कहा। 8 जिलहज्जा की सुबह तुल्लू हुई। ये कोई आम सुबह नहीं थी। एक तरफ लाखों का मजमा एहराम की सफेद चादरों में मलबूस होकर मिना की तरफ रवां दवां था और दूसरी तरफ रसूल जादियों और हाशमी जवानों का एक मुख्तसर मगर इंतहाई पुरवकार और जलालत से भरा हुआ काफिला मक्का से इराक की जानिब रवाना होने की तैयारी कर रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जिसने आसमान के फरिश्तों को भी अश्कबार कर दिया। काबा की जान काबे को अलविदा कह रही थी। खेमों के बाहर हजरत अब्बास अलमदार, अली अकबर, कासिम और दीगर बनी हाशिम के जवान मुस्तैद खड़े थे। महमलों को सजाया जा रहा था और ऊंटों की सवारियां तैयार की जा रही थी, जिनमें सानिए झरा, सैयदा जैनब और उम्मे कुलसूम सलाम उल्लाह अलैहा जैसी जलीलुल कद्र बीबियां शामिल थीं। निहायत जलालत, एहतराम और पर्दे के सख्त एहतिमाम के साथ महमलों में सवार हुईं। अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम की निगरानी में ये काफिला इस शान से चला कि तारीख इसकी नजीर पेश करने से कासिर है। जैसे ही इस नूरानी काफिले ने मक्का की हदूद से बाहर कदम रखा, एक नया इम्तिहान सामने आ गया। मक्का के अब्बासी और उमवी हुक्काम को जब इस अचानक रवानगी की इत्तला मिली तो उन्होंने काफिले को रोकने का फैसला किया। मक्का के गवर्नर अम्र बिन सईद अल-अश्तक के मुसल्लह सिपाहियों का एक दस्ता, जिसकी क़यादत यहया बिन सईद कर रहा था, तेजी से आगे बढ़ा और उसने इमाम आली मकाम का रास्ता रोक लिया। यहया बिन सईद ने इंतहाई गुस्ताखाना लहजे में आगे बढ़कर कहा कि ए हुसैन, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं कि आप मुसलमानों की जमात और खलीफा के इत्तेहाद से अलग होकर तफरका पैदा कर रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस जाहिलाना और जालिमाना एतराज का जवाब देने के बजाय इंतहाई पुरवकार अंदाज में कुरान मजीद की सूरह यूनुस की इस आयत की तिलावत फरमाई कि मेरे लिए मेरा अमल है और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूँ। यहया बिन सईद के मुसल्लह दस्ते ने जब देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम किसी सूरत वापस जाने पर तैयार नहीं है तो उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऊंटों की महारें पकड़ने और काफिले को जबरदस्ती मक्का वापस ले जाने की कोशिश की। उनकी इस जसारत पर बनी हाशिम के गैरतमंद जवान, जिनकी रगों में अली इब्न ए अबी तालिब का खून दौड़ रहा था, जलाल में आ गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और दीगर जवानों ने अपनी शमशीरें बेनियाम कर ली। कोड़ों और तलवारों के दस्तों से मामूली झड़प और तल्ख कलामी हुई, मगर जब हुकूमती दस्ते ने हाशमी शेरों के तेवर देखा और महसूस किया कि अब्बास इब्न ए अली की तलवार बेनियाम हो चुकी है और वो किसी भी कीमत पर काफिले को रुकने नहीं देंगे, तो उनके दिलों पर हैबत तारी हो गई और वो खौफजदा होकर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। इमाम का काफिला पूरी शान और शौकत और अज़्म व इस्तक़लाल के साथ उनकी सफ़ों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहा। इस काफिले का मक्का से निकलना कोई आम वाक़या नहीं था, बल्कि ये इस्लाम की बखा, इंसानियत की मेराज और यजीदियत के ज़वाल का नुक्ता आगाज था। 8 जिलहज्जा को रवाना होने वाले इस काफिले का हर कदम अल्लाह की रजा और उसके सच्चे दीन को बचाने की जानिब
उठ रहा था। इमाम हुसैन इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर थे कि कूफा के हालात साजगार नहीं हैं। आप जानते थे कि आपके तन्हा सफीर हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा में किन मसाइब का सामना है, जिन्हें इत्तेफाक से उसी दिन यानी 9 जिलहज्जा को कूफा में इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। लेकिन इमाम का ये सफर महज कूफा की हुकूमत या कोई दुनियावी इक्तिदार हासिल करने के लिए नहीं था। ये तो यजीदियत के इस फौसिद निजाम के खिलाफ एक अब्दी और खुदाई ऐलान बगावत था, जो दीन मोहम्मदी की बुनियादों को खोखला करके हलाल खुदा को हराम और हराम खुदा को हलाल कर रहा था। मंजिल बे मंजिल ये काफिला आगे बढ़ता रहा। मक्का से निकलकर पहला बड़ा पड़ाव तनईम के मकाम पर किया गया। वहां से गुजरते हुए यमन के हाकिम की तरफ से यजीद के लिए भेजा गया एक काफिला मिला, जिसमें मालो असबाब और कीमती तहाइफ लदे हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस काफिले को रोका और तमाम मालो असबाब को अपनी तहवील में ले लिया, क्योंकि वो माल मुसलमानों के बैतुल माल का था और यजीद जैसे जालिम और फसिक हुक्मरान को इस माल पर कोई हक्कर नहीं पहुंचता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उन ऊंट वालों से फरमाया कि जो हमारे साथ इराक चलना चाहे उसे हम पूरा किराया देंगे और जो वापस जाना चाहे उसे यहीं तक की मजदूरी मिल जाएगी। इस अमल से इमाम ने ये वाजह कर दिया कि वो हक के सच्चे वारिस हैं और तागूती ताकतों के कब्जे को तस्लीम नहीं करते। जब ये काफिला आगे बढ़ा तो मक्का के गवर्नर अम्र बिन सईद ने दोबारा एक खत भेजा, जिसमें बज़ाहिर अमान और सुलह की पेशकश की गई थी ताकि किसी तरह इमाम को उसके मिशन से रोका जा सके। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि इन अमान नामों की हकीकत क्या है। उन्होंने इस खत का जवाब देते हुए फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमान अल्लाह की अमान है और जो दुनिया में अल्लाह से नहीं डरता उसे आखिरत में अमान नसीब नहीं होगी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा ये सफर हक के गलबे और बातिल की नाबूदी के लिए है और मैं किसी जालिम की बैत करके अपने नाना के दीन का सौदा नहीं कर सकता। रास्ते की तवालत, सहरा की चिलचिलाती धूप और रातों की तारीकी इस काफिले के अज़्म को एक लम्हे के लिए भी मुतजलजल नहीं कर सकी। दिन रात ये कारवां चलता रहा। सफ़ा, जातेर, हाजिज और खुजैमिया जैसी मुख्तलिफ मंजिलों से होता हुआ करबला की तरफ बढ़ता रहा। हर पड़ाव पर और हर मंजिल पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों को इस सफर के हतमी अंजाम यानी शहादत से आगाह करते रहे। आप बार बार फरमाते रहे कि जो मौत से डरता है वो यहाँ से वापस चला जाए, क्योंकि यह सफर तख्त ओताज का नहीं बल्कि कटे हुए सरों और जले हुए खेमों का सफर है। मगर उन असहाब की वफा पर सलाम जिन्होंने हर पड़ाव पर यही जवाब दिया कि ऐ फर्जंदे रसूल, अगर हमें 70 बार कत्ल किया जाए और जलाया जाए तब भी हम आपके कदमों को नहीं छोड़ेंगे। सफर के दौरान जब काफिला जाते इर्क के मकाम पर पहुंचा तो वहां इमाम हुसैन की मुलाकात एक मशहूर शायर फर्जदक से हुई। इमाम ने उससे इराक और खुसूसन कूफा के लोगों के अहवाल दरियाफ्त किए। फर्जदक ने कूफा की अंदरूनी हालत को एक जुमले में बयान करते हुए कहा कि ए फर्जंदे रसूल, उन लोगों के दिल तो आपके साथ हैं लेकिन उनकी तलवारें बनी उमैया के साथ हैं और सच्चा फैसला आसमान से नाजिल होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर फरमाया कि तुमने सच कहा है, फैसला अल्लाह के हाथ में है और वो हर रोज एक नई शान में होता है। अगर कज़ा ओ कद्र हमारी मुराद के मुताबिक नाजिल हो तो हम उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करेंगे और अगर हालात हमारे और हमारी उम्मीदों के दरमियान हाइल हो जाएं, तो भी वो शख्स गुनाहगार नहीं हो सकता जिसकी नीयत हकार हो और जिसका दिल तकवा से भरा हो। अगली मंजिलों में से जब ये कारवां हाजिज के मकाम पर पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा के लोगों के नाम एक और खत तहरीर फरमाया, जिसमें आपने अपनी मक्का से रवानगी और अपने मिशन की वजाहत की और उसे अपने एक और बावफा कासिद कैस बिन मुसहिर सईदावी के हाथ कूफा रवाना किया। लेकिन अफसोस कि कैस को रास्ते में ही यजीद के गवर्नर इब्ने जियाद के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और जब उनसे खत चबाने को कहा गया ताकि राज फाश न हो तो उन्होंने खत के मजामीन को जबान से बयान कर दिया और इमाम की हिमायत का ऐलान करते हुए कूफा के दार उल इमारा की छत से गिराकर शहीद कर दिए गए। इमाम को जब रास्ते में अपने इन वफादार साथियों और कासिदों की शहादत की खबरें मिली तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आपके अज़्म में जर्रा बराबर भी लग्ज़िश न आई, बल्कि आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर फरमाया कि हमारे मददगारों ने अपना अहद पूरा कर दिया और अब हमारी बारी है। ये 8 जिलहज्जा के दिन मक्का से रवानगी ही थी जिसने दरअसल मैदान करबला की बुनियाद रखी और हक और बातिल का वो मार्का बपा किया जिसने कयामत तक के लिए जालिमों और जाबिरों के चेहरों से नकाब उलट दिया। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दिन मक्का में कयाम करते और खामोशी से वहीं शहीद कर दिए जाते तो यजीद अपनी साजिश में कामयाब हो जाता, काबा की हुर्मत भी पामाल हो जाती और वो अजीम आफाकी पैगाम
जो करबला के मैदान से पूरी दुनिया के मजलूमों तक पहुंचा, वहीं मक्का की गलियों में दब कर रह जाता। लेकिन इस अजीम रवानगी ने दुनिया को ये दर्स दिया कि दीन की बका के लिए वक्त आने पर काबा जैसी मुकद्दस तरीन जगह को भी छोड़ना पड़ता है, ताकि काबे के रब के बनाए हुए दीन को बचाया जा सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये सफर इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि इस्लाम में सबसे मुकद्दम और सबसे बड़ी चीज अल्लाह के दीन, उसकी शरीयत और इंसानियत की हिफाजत है। आज भी जब 8 जिलहज्जा का दिन आता है, तो जहां एक तरफ दुनिया भर के हुज्जाज ए कराम मिना के खेमों में कयाम की तैयारियों में मसरूफ होते हैं, वहीं मुहिब्बान ए हको सदाकत और अहले बैत के चाहने वालों के दिल इस अजीम और बेमिसाल कुर्बानी की याद में तड़प उठते हैं, जब दीन खुदा की खातिर और उम्मत मुस्लिमा की बेदारी के लिए एक भरा घराना मक्का की पुरअमन फजाओं को अलविदा कहकर करबला की तपती हुई रेत की तरफ रवाना हुआ था। मजीद ईमान फरोज वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नया वाक़या सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।